Here is the paragraph by paragraph Hindi translation of the text from Amarnath by Sister Nivedita, as shown in the image 1 billion. English text. It was in the course of an open-air meal in the Mughal gardens at Achhabal that the Swami suddenly announced that he would go to Amarnath with the pilgrims and take his daughter with him. Within our little party, there was too much feeling of delighted congratulation for any obstacle to be put in the way of the fortunate member. And aided thus, as well as by the state officer in charge of the journey, preparations went forward for this unique experience. Hindi translation. अचबल के मुगल गार्डन मोगुल गार्डन्स में खुले आसमान के नीचे भोजन करने के दौरान स्वामी जी ने अचानक घोषणा की कि वो तीर्थयात्रियों के साथ अमरनाथ जाएंगे और अपनी बेटी भगनी निवेदिता को भी अपने साथ ले जाएंगे। हमारे छोटे से दल के भीतर इस भाग्यशाली सदस्य के मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न करने के बजाय अत्यधिक खुशी और बधाई की भावना थी, और इस प्रकार मिली सहायता साथ ही यात्रा के प्रभारी राज्य अधिकारी स्टेट ऑफिसर की मदद से इस अनूठे अनुभव के लिए तैयारियां आगे बढ़ीं। इंग्लिश टेक्स्ट. Kashmir seemed in those weeks to be full of pilgrims. We left Achhabal and returned to our boats at Islamabad for final arrangements, and everywhere we saw the march of gathering hosts. It was all very quiet and orderly and picturesque. 2,000 or 3,000 people would encamp in a field and leave it before dawn, with no trace of their occupation, save the ashes of their cooking fires. They carried a bazaar with them, and at each halting place, the pitching of tents and opening of shops took place with incredible rapidity. Organization appeared to be instinctive. A broad street would run through the middle of one part of the camp, and here one could buy dried fruits, milk, dals and rice. The tent of the Tehsildar, with that of the Swami on one side and my own on the other, was generally placed near some advantageous spot for the lighting of the evening fire, and thus his neighborhood tended to form a social center. Hindi translation. उन हफ्तों में ऐसा लग रहा था मानो पूरा कश्मीर तीर्थयात्रियों से भरा हुआ है। हम अचबल से रवाना हुए और अंतिम व्यवस्था के लिए इस्लामाबाद में अपनी नावों पर लौट आए, और हर तरफ हमने इकट्ठा होते हुए जनसमूह का मार्च देखा। ये सब बहुत शांत, सुव्यवस्थित और सुंदर, मनोरम था। 2 या 3 हजार लोग एक मैदान में डेरा डालते थे और भोर सुबह होने से पहले उसे छोड़ देते थे, जहां उनके ठहरने का कोई नामो निशान नहीं बचता था, सिवाय उनके खाना पकाने वाले चूल्हों की राख के। वे अपने साथ एक बाजार लेकर चलते थे, और प्रत्येक पड़ाव पर अविश्वसनीय गति से तंबू गाड़ दिए जाते थे और दुकानें खुल जाती थीं। ऐसा लगता था जैसे प्रबंधन, संगठन उनके स्वभाव में ही था। शिविर के एक हिस्से के बीच से एक चौड़ी सड़क गुजरती थी, और यहाँ कोई भी सूखे मेवे, दूध, दाल और चावल खरीद सकता था। तहसीलदार का तंबू, जिसके एक तरफ स्वामी जी का और दूसरी तरफ मेरा अपना तंबू था, आमतौर पर शाम की आग जलाने के लिए किसी अनुकूल स्थान के पास लगाया जाता था, और इस प्रकार उनका पड़ोस एक सामाजिक केंद्र बन जाता था। English. There were hundreds of monks of all the orders with their jerua tents, some no larger than a good-sized umbrella, and amongst these, the Swami's influence appeared to be magnetic. हिंदी. वहां सभी संप्रदायों के सैकड़ों साधु अपने गेरुए तंबुओं के साथ मौजूद थे, जिनमें से कुछ तो एक अच्छे आकार की छतरी से बड़े नहीं थे, और इन सब के बीच स्वामी जी का प्रभाव चुंबकीय प्रतीत होता था। English. The more learned of them swarmed about him at every halting place, filling his tent and remaining absorbed in conversation throughout the hours of daylight. हिंदी. उनमें से जो अधिक विद्वान थे, वे हर पड़ाव रुकने की जगह पर उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, उनके तंबू को भर देते थे, और दिन के उजाले के दौरान बातचीत में पूरी तरह मग्न रहते थे। English. The talk on their side, he told us afterwards, had been all of Siva, and they had remonstrated with him seriously when he had insisted occasionally on drawing their attention to the world about them. हिंदी. स्वामी जी ने बाद में हमें बताया कि उनकी साधुओं की तरफ से सारी बातें शिव के बारे में थीं, और जब उन्होंने, स्वामी जी ने, कभी कभार उनके आसपास की दुनिया की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया, तो उन्होंने, साधुओं ने, गंभीरता से उनके सामने अपनी आपत्ति जताई थी। English. Even foreigners, they urged, were men. Why make such distinctions between Swadesh and Bidesh? हिंदी. उन्होंने तर्क दिया कि विदेशी भी तो मनुष्य ही हैं, फिर स्वदेश और विदेश के बीच ऐसा भेद क्यों किया जाए? English. Nor could many of them understand the warmth of his love and sympathy for Mohammedanism. हिंदी. और न ही उनमें से बहुत से लोग इस्लाम, मोहम्मदनवाद के प्रति उनके प्रेम और सहानुभूति की गहराई को समझ पा रहे थे। English. The same otherworldliness that made Swadesh and Bidesh indistinguishable
also prevented these simple souls from formally conceiving of a unity in which Hindu and Mohammedan were but rival elements. हिंदी उसी पारलौकिक सोच, परलोक की भावना ने जिसने स्वदेश और विदेश को अभिन्न एक समान बना दिया था, इन सरल आत्माओं को औपचारिक रूप से एक ऐसी एकता की कल्पना करने से भी रोक दिया जिसमें हिंदू और मुसलमान केवल विरोधी तत्व, प्रतिद्वंद्वी माने जाते थे. English. The soil of the Punjab, they argued, was drenched with the blood of those who had died for the faith. Here at least, let him practice a narrow orthodoxy. हिंदी उन्होंने तर्क दिया कि पंजाब की मिट्टी उन लोगों के खून से सींची गई थी जिन्होंने अपने धर्म के लिए जान दी थी. यहां कम से कम उन्हें स्वामी जी को एक संकीर्ण रूढ़िवादिता का पालन करना चाहिए. English. In answer to this, as became one who was, in fact, an anachronism of the future, the Swami made those practical concessions of the moment that were expressive of his love for the brethren and drove his principles home to their minds with the greater force and vehemence. हिंदी इसके उत्तर में, जैसा कि उस व्यक्ति के लिए स्वाभाविक था जो वास्तव में भविष्य का एक अग्रदूत, समय से आगे चलने वाला था, स्वामी जी ने उस समय कुछ व्यावहारिक समझौते, रियायतें किए जो अपने भाइयों के प्रति उनके प्रेम को व्यक्त करते थे, और उन्होंने अपने सिद्धांतों को अधिक शक्ति और तीव्रता के साथ उनके दिमाग में बिठा दिया. English. But as he told the tale of his warm discussions, the foreign mind could not help, with some amusement, noting the paradox that the Tehsildar himself and many officers and servants of the pilgrimage had been Mussulmans, and that no one had dreamt of objecting to their entering the cave with the Hindu worshippers on the ultimate arrival at the shrine. हिंदी लेकिन जब उन्होंने अपनी इन गर्मागर्म चर्चाओं की कहानी सुनाई तो विदेशी मन, लेखिका सिस्टर निवेदिता, कुछ मनोरंजन के साथ इस विरोधाभास को नोट किए बिना नहीं रह सका कि खुद तहसीलदार और तीर्थयात्रा के कई अधिकारी और सेवक मुसलमान थे, और पवित्र गुफा तक पहुंचने पर किसी ने भी हिंदू भक्तों के साथ उनके गुफा में प्रवेश करने पर आपत्ति जताने का सपना भी नहीं सोचा था. English. The Tehsildar came afterwards indeed with a group of friends, begging formal acceptance by the Swami as disciples, and in this no one seemed to find anything incongruous or surprising. हिंदी वास्तव में तहसीलदार बाद में अपने दोस्तों के एक समूह के साथ आए और स्वामी जी से खुद को शिष्यों के रूप में औपचारिक रूप से स्वीकार करने की भीख प्रार्थना मांगी, और इसमें किसी को भी कुछ भी असंगत या आश्चर्यजनक नहीं लगा. 1. English. Leaving Islamabad, we caught up somewhere with the pilgrimage and camped with it for that night at Pawan, a place famous for its holy springs. I can remember yet the brilliance of the lights reflected in the clear black waters of the tank that evening, and throngs of pilgrims proceeding in little groups from shrine to shrine. हिंदी अनुवाद. इस्लामाबाद छोड़ने के बाद हम रास्ते में कहीं तीर्थ यात्रा यात्रियों के समूह से जा मिले, और उस रात हमने पवान नामक स्थान पर उनके साथ शिविर कैंप लगाया जो अपने पवित्र झरनों के लिए प्रसिद्ध है. मुझे आज भी उस शाम जलाशय के साफ काले पानी में परावर्तित रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी की चमक याद है, और छोटे छोटे समूहों में एक मंदिर से दूसरे मंदिर की ओर बढ़ते तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ भी याद है. English. At Paulgam, the village of the shepherds, the camp halted for a day to keep Ekadasi. It was a beautiful little ravine floored, for the most part with sandy islands in the pebble-worn bed of a mountain stream. The slopes about it were dark with pine trees, and over the mountain at its head was seen, at sunset, the moon, not yet full. It was the scenery of Switzerland or Norway, at their gentlest and loveliest. Here we saw the last of human dwellings, a bridge, a farmhouse, with its ploughed fields and a few cedar huts. And here, on a grassy knoll, when the final march began, we left the rest of our party encamped. हिंदी अनुवाद. पहलगाम में जो चरवाहों का गांव है, एकादशी का व्रत रखने के लिए शिविर एक दिन के लिए रुका. ये एक सुंदर छोटी घाटी, रवीन थी, जिसका अधिकांश हिस्सा पहाड़ी धारा के पत्थरों से घिरे तल में रेतीले द्वीपों से बना था. इसके आसपास के ढलान देवदार, पाइन के पेड़ों के कारण गहरे रंग के दिख रहे थे, और सूर्यास्त के समय पहाड़ के शीर्ष पर चंद्रमा दिखाई दे रहा था, जो अभी पूरी तरह से गोल पूर्णिमा का नहीं था. ये स्विट्जरलैंड या नॉर्वे के सबसे शांत और सबसे सुंदर दृश्यों जैसा था. यहां हमने अंतिम मानव बस्तियां देखीं, एक पुल, एक फार्म हाउस जिसके खेत जुते हुए थे, और कुछ चरवाहों की झोपड़ियां, सेटर हट्स. और यहां एक घास वाली छोटी पहाड़ी नोल पर जब अंतिम चढ़ाई शुरू हुई तो हमने अपने दल के बाकी सदस्यों को शिविर में ही छोड़ दिया. English. Through scenes of indescribable beauty, 3,000 of us ascended the valleys that opened before us as we went. The first day we camped in a pine wood.
The next we had passed the snow line and pitched our tents beside a frozen river. That night, the great campfire was made of juniper, and the next evening, at still greater heights, the servants had to wander many miles in search of this scanty fuel. At last the regular pathway came to an end, and we had to scramble up and down along goat paths on the face of steep declivities till we reached the boulder-strewn gorge in which the cave of Amarnath was situated. As we ascended this, we had before us the snow peaks covered with a white veil newly fallen, and in the cave itself, in a niche never reached by sunlight, shone the great ice lingam that must have seemed, to the awestruck peasants who first came upon it, like the waiting presence of God. हिंदी अनुवाद। अवर्णनीय सुंदरता के दृश्यों के बीच से गुजरते हुए हम 3000 लोगों ने उन घाटियों में चढ़ाई की जो हमारे आगे बढ़ने के साथ साथ खुलती जा रही थीं। पहले दिन हमने देवदार के जंगल पाइनवुड में शिविर लगाया। अगले दिन हमने हिमरेखा स्नोलाइन को पार कर लिया था और एक जमी हुई नदी के किनारे अपने तंबू गाड़ दिए थे। उस रात अलाव कैंपफायर जलाने के लिए जूनी पर एक प्रकार की पहाड़ी झाड़ी की लकड़ी का उपयोग किया गया, और अगली शाम और अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर सेवकों को इस दुर्लभ ईंधन की तलाश में कई मील तक भटकना पड़ा। अंततः नियमित रास्ता समाप्त हो गया और हमें खड़ी ढलानों पर बकरियों के चलने वाले तंग रास्तों, गोट पाथ्स के सहारे ऊपर नीचे रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ा, जब तक कि हम पत्थरों और चट्टानों से भरी उस घाटी गॉर्ज तक नहीं पहुंच गए जहां अमरनाथ की गुफा स्थित थी। जैसे ही हम इस पर चढ़े, हमारे सामने ताज़ा गिरी हुई बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी बर्फीली चोटियां थीं, और स्वयं गुफा के भीतर एक ऐसे आले निष्कोने में जहां सूर्य की रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी, विशाल बर्फ का लिंग बर्फानी बाबा चमक रहा था, जो पहली बार यहां आने वाले विस्मय से भरे हैरान ग्रामीणों को ईश्वर की साक्षात और प्रतीक्षारत उपस्थिति जैसा लगा होगा। 1. English. The Swami had observed every rite of the pilgrimage as he came along. He had told his beads, kept fasts, and bathed in the ice-cold waters of 5 streams in succession, crossing the river Gravels on our second day. And now, as he entered the cave, it seemed to him as if he saw Siva made visible before him. Amidst the buzzing, swarming noise of the pilgrim crowd and the overhead fluttering of the pigeons, he knelt and prostrated 2 or 3 times unnoticed. And then, afraid lest emotion might overcome him, he rose and silently withdrew. He said afterwards that in these brief moments he had received from Siva the gift of Amar, not to die until he himself had willed it. In this way possibly was defeated or fulfilled that presentiment which had haunted him from childhood, that he would meet with death in a Siva temple amongst the mountains. हिंदी अनुवाद। स्वामी जी ने रास्ते में आते समय यात्रा की हर एक रीत धार्मिक नियम का पालन किया था। उन्होंने माला जपी थी, उपवास रखे थे और हमारे दूसरे दिन नदी के कंकड़ों को पार करते हुए लगातार 5 धाराओं के बर्फ जैसे ठंडे पानी में स्नान किया था। और अब जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश किया, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने सामने साक्षात शिव के दर्शन कर लिए हों। श्रद्धालुओं की भीड़ के भिनभिनाते, उमड़ते शोर और ऊपर कबूतरों के पंख फड़फड़ाने के बीच वे बिना किसी के ध्यान में आए, घुटनों के बल झुके और 2 या 3 बार दंडवत प्रणाम किया, और फिर इस डर से कि कहीं भावनाएं उन पर हावी न हो जाएं, वे उठे और चुपचाप पीछे हट गए। उन्होंने बाद में कहा कि इन संक्षिप्त क्षणों में उन्हें शिव से अमर होने का वरदान मिला था, यानी तब तक न मरने का जब तक कि वे खुद ऐसा न चाहें। इस तरह संभवतः वह पूर्वाभास विफल हो गया या पूरा हो गया जो उन्हें बचपन से सता रहा था कि उनकी मृत्यु पहाड़ों के बीच किसी शिव मंदिर में होगी। English. Outside the cave, there was no Brahminic exploitation of the helpless people. Amarnath is remarkable for its simplicity and closeness to nature. But the pilgrimage culminates on the great day of Rakhi Bandhan, and our wrists were tied with the red and yellow threads of that sacrament. Afterwards we rested and had a meal on some high boulders beside the stream before returning to our tents. हिंदी अनुवाद। गुफा के बाहर असहाय लोगों का ब्राह्मणों द्वारा कोई शोषण नहीं था। अमरनाथ अपनी सादगी और प्रकृति से निकटता के लिए उल्लेखनीय है, लेकिन यात्रा का समापन राखी बंधन के महान दिन पर होता है, और हमारी कलाइयों पर उस पवित्र संस्कार के लाल और पीले धागे मौली राखी बांधे गए थे। इसके बाद अपने तंबुओं में लौटने से पहले हमने धारा के किनारे कुछ ऊंचे पत्थरों चट्टानों पर आराम किया और भोजन किया। English. The Swami was full of the place. He felt that he had never been to anything so beautiful. He sat long silent. Then he said dreamily, "I can well imagine how this cave was first discovered. A party of shepherds one summer day must have lost their flocks and wandered in here in search of them.
Then when they came home to the valleys, they told how they had suddenly come upon Mahadev. हिंदी अनुवाद। स्वामी जी पूरी तरह से उस स्थान के प्रभाव में डूबे हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि वे कभी भी इतनी सुंदर जगह पर नहीं आए थे। वे काफी देर तक शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने स्वप्निल, खोए हुए अंदाज में कहा, मैं अच्छी तरह से कल्पना कर सकता हूं कि इस गुफा की खोज पहली बार कैसे हुई होगी। गडरियों का एक समूह गर्मियों के एक दिन अपनी भेड़ों के झुंड को खो बैठा होगा और उनकी तलाश में भटकता हुआ यहां आ पहुंचा होगा। फिर जब वे घाटियों में अपने घर लौटे तो उन्होंने बताया कि कैसे वे अचानक महादेव के सामने आ पहुंचे थे। इंग्लिश। Of my master himself, in any case, a like story was true. The purity and whiteness of the ice pillar had startled and enwrapped him. The cavern had revealed itself to him as the secret of Kailas. And for the rest of his life, he cherished the memory of how he had entered a mountain cave and come face to face there with the Lord himself. हिंदी अनुवाद। स्वयं मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद के मामले में हर हाल में एक ऐसी ही कहानी सच थी। बर्फ के स्तंभ की पवित्रता और सफेदी ने उन्हें चकित और मंत्रमुग्ध कर दिया था। उस गुफा ने खुद को उनके सामने कैलाश के रहस्य के रूप में प्रकट किया था और अपने शेष जीवन के लिए उन्होंने इस स्मृति को संजोकर रखा कि कैसे उन्होंने एक पहाड़ी गुफा में प्रवेश किया था और वहां स्वयं साक्षात ईश्वर के आमने सामने दर्शन किए थे।